But children, the case is not so in today's world. The trend of sex ratio is changing, and the reasons I have just written before this slide, that maybe if you look at the 2005 and 6 figure, the number of males in females in India was 414 to compared with 2015-16 is it went up to 919. This is about the sex ratio. That means the number of females per thousand males. In Haryana, it is sad to see that it was only 762 females to every 1000 males, and it rose up to 836 females to every 1000 males. So this orange figure bar is of year 2005-6 and the blue bar is of the year 2015-16. Then we come to Maharashtra, where it was already on a better condition, but there also it has increased in the year 2015-16. So has it increased in Punjab and Haryana from 734 to 860, and in Rajasthan almost not a lot of differences there, 847 to 887. Now in recent year, however, the trend of sex ratio is increasing. This may be due to education, awareness programs done by the government. Due to poverty also, people have start producing less children, and if they have one or two children, then they are not able to kill the girl child or discriminate between the male and female population. Earlier they used to give birth to many children, and they used to prefer having boys because they thought that the boys will be the bread earners of the family when they grow. Patriotic family was always there, and the girls were considered as burden on the family, that they had to be married, and at the time of marriage a lot of money could have been given. So the family used to sell its land in order to get the girl married. Well, on the other hand, the boys would bring dowry in the home. So it was quite a very funny situation, that the parents were thinking on materialistic point of view. But now it's new India, with many girls achieving very high positions in their areas, in the sports part or in education, space, anywhere. So a change has been there in the sex ratio, average sex ratio of India. And the government also has implemented various programs so that parents or the family do not kill the child or the fetus, and in the embryo, if it is a male, they keep it, and when it is a female, they put an end to it. So the government has tried to finish or abolish such centers which tell them beforehand whether the child is going to be a boy or a girl. Now listen to this video. ये हरियाणा का इतिहास। ये हरियाणा का आज है। सानिया नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा मलिक, फोगाट बहनें,
निर्मला देवी, परिणीति चोपड़ा। ये है आज के हरियाणा की शेरनी, जो देश ही नहीं दुनिया में कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं। जो वार्षिक हमारी जेंडर रेशियो वो 900 से पार हो गई है। अगर हम केवल फरवरी की बात करें, फरवरी इस वर्ष की, तो 938 हो गई है। 1000 बेटों पर आज हरियाणा में 938 बेटियां हैं। बात वाकई खुशी की है। कई सालों से हरियाणा ने वो वक्त नहीं देखा जब 1000 बेटों में बेटियों की संख्या 900 के आसपास भी पहुंची हो। चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताई थी। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। हरियाणा में योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक बेटी को ही चुना गया, फिल्म एक्टर परिणीति चोपड़ा। एज अ गर्ल कुछ करने के लिए फॉर द गर्ल चाइल्ड, ये आई थिंक बहुत सारे लोग इससे नहीं जुड़े हुए, तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ब्रांड एम्बेसडर परिणीति की गुजारिश पर ही हरियाणा के लोगों ने गौर किया। बेटियों पर हरियाणा की सोच बदली। लोगों ने तय किया कि अब हरियाणा बेटियों की हत्या नहीं करेगा। बेटियों के लिए बदल गया हरियाणा। अब हरियाणा से सीखो बेटी बचाना, क्योंकि ये है हरियाणा। तो हरियाणा पूरे देश के लिए एक मिसाल, एक नजीर बन चुका है। 10 साल पहले जहां पर 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या सिर्फ 819 हुआ करती थी, आज वो 900 के पार पहुंच चुकी है। वाकई देश के हर राज्य को हरियाणा से बेटी बचाओ का मंत्र सीखना होगा। अब हरियाणा को हरियाणा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हरियाणा की छोरियां हरियाणा की पहचान जो बनी है। बेटियों के लिए हरियाणा में आए बदलाव, और हरियाणा में प्रति 1000 बेटों में बेटियों की गिनती 938 पहुंचने के पीछे हरियाणा सरकार की योजनाओं का अहम रोल रहा है। प्रण किया था देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि हरियाणा का लिंगानुपात सम्मानजनक स्तर पर जरूर पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेटियों को बचाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती है। पिछले एक दशक में ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा में लिंगानुपात 900 के पार गया है। 2001 में हुई जनगणना रिपोर्ट में चाइल्ड सेक्स रेशियो प्रति 1000 लड़कों में 819 लड़कियां थी। 2011 में हुई जनगणना में बदलाव का संकेत मिला। लड़कियों की गिनती 834 पर पहुंची। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर आंकड़े जारी किए। बेटियों के लिए हरियाणा में बही बयार मन को सुकून देने वाली है। प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की गिनती 938 तक पहुंच गई। कुल मिलाकर के आज ये बढ़ करके जो वार्षिक हमारी जेंडर रेशियो 900 से पार हो गई है। अगर हम केवल फरवरी की बात करें, फरवरी इस वर्ष की, तो 938 हो गई है। इसलिए ये बहुत जल्दी ही जो 950 का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक समाज के सहयोग से ये सब पहुँचेगा। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हरियाणा इसमें बहुत अग्रणी हुआ है। सारे देश में, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा मिशन एक इस प्रकार का वो सफल होगा। और इसमें केवल बेटी बचाने का ही विषय नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई। सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा के लोगों की सोच में भी बदलाव आना शुरू हुआ। जीता जागता उदाहरण बना सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। हरियाणा में जींद के बीवीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान ने इस कैंपेन की शुरुआत की, जिसे न सिर्फ हरियाणा ने बल्कि पूरे देश में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन एक जुनून बन गया। सेल्फी हो तो बस बेटी के साथ, बिना बेटी के सेल्फी बेकार।
ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे हरियाणा में एक क्रांति की तरह चलाया हुआ है, जिससे कि पूरे हमारे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सफल अभियान के रूप में लोगों के सामने आया है और बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हरियाणा में महिला थाना की शुरुआत की गई। महिला थाना का मकसद महिलाओं को अपनी बात को बिना डर के पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। बेटियों को बचाने की तमाम कोशिशों के बीच हरियाणा में भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। हरियाणा सरकार ने भ्रूण हत्या का भी तोड़ निकाल लिया। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि भ्रूण हत्या की खबर देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार की योजना भी कारगर साबित हुई। तो भी श्रेय इस बात का जाता है कि एक ऐसा विषय जो किसी भी सरकार ने पहले सोचा नहीं और उसके ऊपर एक सोच बनी और एक सार्थक सोच बनी। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम 1 लाख के लगभग, जिसमें अधिकांश महिलाएं थी, ऐसे लोगों को बुला करके जो आह्वान किया था पानीपत में, उसका एक बहुत बड़ा हमको सराहा मिला है और उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत जो करवाई। हरियाणा ने तो बाजी मार ली। राज्य में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की गिनती 938 पहुंचा दी है। अब देश के दूसरे राज्यों को हरियाणा से सीख लेनी होगी बेटियों को बचाने की।